السلام علیکم۔ یہ ویڈیو میں آپ سنیے شادی کیوں ضروری ہے۔ قاری احمد علی شاب کا پورا بیان ضرور سنیے، اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں۔ ہمارے بیٹے رضوان اور ہماری بیٹی سازیہ کا نکاح ہونے جا رہا ہے، لیکن نکاح ہونے سے پہلے مجھے کہا گیا کہ کچھ باتیں عرض کروں۔ ویسے طبیعت بہت خراب ہے، بخار میں ہوں، کھانسی میں ہوں، سردی میں ہوں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ کی قسم، بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نبی، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ وہ ہم لوگ ہیں کہ زبان پر ہر وقت ہم پیارے نبی سے بہت محبت کرتے، بہت محبت کرتے، لیکن حقیقت میں ہم سے بڑا کھوکھلا اور ڈھونگی آدمی کوئی نہیں ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں میرے پیاروں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کا نام ہے؟ صرف زبان سے بولنا مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یا نبی سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور بولو کرتے ہیں۔ کبھی میں سب کو کہوں گا، سب اعلان کریں گے ہاں کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کب تک میرے پیاروں یہ جھوٹ والا معاملہ چلے گا؟ ہماری بیوی جھوٹ برداشت نہیں کرتی، ہماری ماں برداشت نہیں کرتی، ہمارے ابا برداشت نہیں کرتے، کیوں ہمارے نبی مدینے والے جھوٹ کو برداشت کرے؟ جبکہ اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا بولو کوئی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، بولو قیامت کا دن ہوگا، اللہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے، 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ، اللہ سارے نبیوں کو جمع کریں گے اور کہہ دو سبحان اللہ، ہر نبی کا ایک ممبر لگے گا، بولو سبحان اللہ، اور ممبر لگتا جائے گا اور اس پر پلیٹ لگی ہوگی جیسے حضرت آدم علیہ السلام، تو آواز آئے گی آدم ارفع علی المنبر، آدم آ جاؤ، آپ کا ممبر آ گیا، حضرت نوح کا ممبر آ گیا، حضرت یعقوب کا ممبر آ گیا، حضرت یوسف کا ممبر آ گیا، حضرت موسیٰ کا آ گیا، وغیرہ وغیرہ۔ آخری ممبر جو موتیوں سے جڑا ہوگا لایا جائے گا اور آواز آئے گی یا محمد ارفع علی المنبر، اے محمد آ جاؤ، اب آپ کا ممبر بھی آ گیا، سارے انبیاء بولو کہاں بیٹھے ہوں گے؟ بولو نا کہاں بیٹھے ہوں گے؟ تم بولو نا تمہارا کون سا لکھا ہے؟ نور بھائی یہ لوگ کیوں نہیں بولتے؟ بولو نا سارے نبی کہاں بیٹھے ہوں گے؟ ممبر پر حضرت ابراہیم بھی، حضرت اسماعیل بھی، وہ سب ممبر پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور آواز آئے گی یا احمد ارفع علی المنبر، او احمد، او محمد آ جاؤ، آپ کا ممبر بھی تیار ہے۔ ہمارے نبی ممبر پر نہیں آئیں گے، جو ممبر کا ایسا جو ہاتھ رکھنے کا ہوتا ہے نا، وہیں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اللہ فرمائیں گے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ ممبر پر، بیٹھ جاؤ، صرف آپ کا انتظار ہے، ایک بار آپ ممبر پر بیٹھے کہ سارے ممبروں کو اٹھایا جائے گا اور سیدھے جنت الفردوس میں پہنچا دیا جائے گا، بولو سبحان، آپ بیٹھ جاؤ۔ ہمارے نبی نہیں بیٹھے، اللہ کی قسم کیا پیارے نبی ہے، کیا آنکھوں میں آنسو چھلکتے ہوں گے۔ اللہ کہیں گے ما یبکیک یا رسول اللہ، اللہ کہیں گے میرے پیارے نبی کیوں رو رہے ہو؟ یہ تو ممبر پر، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی اللہ پوچھیں گے میرے محمد کیوں رو رہے ہو؟ تو کہیں گے ممبر پر بیٹھ جاؤں گا، سب ممبر جنت میں چلے جائیں گے، میری امت کا کیا ہوگا؟ میری امت کا کیا ہوگا جو قیامت کے میدان میں گرمی میں کھڑے ہیں، تپ رہے ہیں، پیاسے ہیں، کھانا نہیں ملا ہے، ان کا کیا ہوگا؟ اس وقت اللہ فرمائیں گے ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ، اب آپ اشارہ کرتے جاؤ، جس کی طرف اشارہ کرتے جاؤ گے ان کو بھی ہم جنت میں پہنچا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ اسی کو ایک آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ قیامت میں مانگتے جاؤ گے، ہم عطا کرتے جائیں گے، اتنے امتی کو معاف کرتے جاؤ گے، اللہ فرماتے اتنے امتی کو میں معاف کروں گا، میں راضی نہیں ہوں گا، فَتَرْضَىٰ، میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے گا۔ تو میرے پیارو، ہمارے نبی کو پوچھا گیا اس وقت آپ کس کو بلاؤ گے؟ بھائی اس وقت آپ کس کو بلاؤ گے؟ اللہ نے تو آپ کے حکم میں دے دیا، آپ کو آرڈر دے دیا، اب آپ جس کی طرف اشارہ کرو گے، فرمایا من علی سنتی، جو میرے طریقے پر ہوگا اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ ہمارے پاس نبی کا طریقہ کون سا؟ نبی کا طریقہ آئے نماز پڑھنے آئے، کتنے یہاں عصر کی نماز پڑھنے آئے؟ عصر کی نماز پڑھنے نہیں آئے، نکاح اٹینڈ کرنے آئے۔ عصر کی نماز اگر پڑھنا ہوتا تو فجر کی نماز کیا ہے؟ فرض ہے کہ واجب ہے؟ فرض۔ عصر کی نماز تو فجر میں کہاں ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے شادی کا یونیفارم ہمارے پاس تیار ہوگا مگر مسجد کا یونیفارم ہمارے پاس تیار نہیں ہوگا، یا تو رومال پہن کر بیٹھو یا تو مسجد کا پلاسٹک کا ٹوپا لے کر بیٹھو۔ کیوں میرے دوستوں؟ کیوں شادی کے لیے تیاری ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے واسطے کیوں تیاری نہیں ہوتی؟ آپ کو ایک بہت تعجب کی بات بتاؤں، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ناصر الدین، بولو کیا نام؟ ناصر الدین بادشاہ گزرے ہیں، ان کا ایک خادم تھے جن کا نام تھا محمد تاج الدین، بادشاہ کا نام سلطان ناصر الدین اور وہ خادم کا نام کیا؟ محمد تاج الدین۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ سلطان ناصر الدین کچھ آئے ہوں گے اور اچانک آ کر بیٹھے اور انہوں نے اپنے خادم کو بلایا، ہمیشہ خادم کو بلاتے تھے محمد تاج الدین، محمد تاج الدین، محمد تاج الدین، آج اچانک آئے اور اپنی کرسی پر بیٹھے اور تاج الدین تاج الدین تاج الدین ادھر آؤ، تو خادم تو آ گئے اور جو کام تھا وہ کام ان کو دیا، خادم نے وہ کام کیا، اس کے بعد خادم نے 3 دن کی چھٹی لے لی اور بالکل گھر میں افسردہ بیٹھ گئے۔ تو بادشاہ کو خبر ملی کہ بھائی وہ 3 دن سے کچھ بیمار نہیں ہے، کچھ ناراض ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو سلطان ناصر الدین نے کہا ان کو بلاؤ، ان کو بولو ناراضگی کی وجہ کیا ہے، کچھ ناراضگی کی وجہ ہو تو بتائے۔ تو ناراضگی کی وجہ یہ بادشاہ ہر وقت آپ مجھے بلاتے محمد تاج الدین، محمد تاج الدین، محمد تاج الدین، اس دن اچانک آپ میرا نام بھول گئے، آپ نے مجھے صرف تاج الدین کہہ کر پکارا۔ سلطان ناصر الدین نے کہا نہیں، نام تو تیرا یاد تھا لیکن آج تک میں نے اپنی زندگی میں بغیر وضو کے محمد نام نہیں لیا ہے، میں نے آج تک اپنی زندگی میں بغیر وضو کے محمد نہیں کہا، اس وقت میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے تاج الدین کہا، اللہ کی قسم اگر میرا وضو ہوتا تو میں محمد تاج الدین کہہ کر پکارتا۔ اس کو کہتے ہیں احترام، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام، محمد نام کا احترام۔ میرے پیارو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقام کس کا اونچا ہوگا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، ہمارے نبی نے فرمایا پورا علم، نالج، ایجوکیشن کا دروازہ کا شہر میں ہوں اور علی اس کا
दरवाजा है। लेकिन आपको मालूम है सुलह हुदैबिया में जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया में जब जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो काफिरों की तरफ से जो शख्स आए थे जिनका नाम सुहेल था, बोले क्या नाम था? सुहेल था, और अहदनामा तैयार करना है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली को कहा कि अली लिखो, अहदनामे में लिखो मिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल की तरफ से ये अहदनामा तैयार होता। वो सुहेल सामने बैठे थे, कहने लगे आपका अहदनामा मैंने देखा, एक बात समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आया? मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं समझ, अगर रसूलुल्लाह हम मानते होते तो हम ये सुलह काय को करते, हम आपके गुलाम नहीं बन जाते। तो हमारे नबी ने कहा क्या लिखना? कहा लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, अपने अब्बा का नाम लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं, क्योंकि हम तो आपको रसूल मानते ही नहीं, अगर मानते होते तो आज ये सब होता ही नहीं। तो हमारे नबी ने हजरत अली को कहा रसूलुल्लाह हटा दो, लिखो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। हजरत अली ऐसे चीख मार के रोए, कहा गर्दन कटा सकता मगर रसूलुल्लाह का नाम अब नहीं हटा सकता। मैंने अपने हाथों से लिखा है मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब अल्लाह की कसम मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं रसूलुल्लाह। मालूम है हमारे नबी ने अपने हाथों से रसूलुल्लाह मिटाया और फिर किसी और को बुलाकर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखवाया। मेरे दोस्तों ये है मोहब्बत, कि अल्लाह के रसूल के नाम से मोहब्बत। यहाँ तो ना अल्लाह के रसूल के चेहरे से मोहब्बत, ना अल्लाह के रसूल के कपड़ों से मोहब्बत। लेकिन खैर आप सोचते होंगे निकाह के मौके पर कारी साहब ये सब क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे एक रिवायत बयान करना है निकाह के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बेटा रिजवान और हाफिज अलमास और इनके घर वाले इस रिवायत पे अमल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ हमारा पूरा सूरत इस रिवायत पर अमल करेगा। सूरत का एक और भाई जहां तक हमारी आवाज पहुंचे अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम खाकर बोलो हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं और कुरान पाक से बढ़कर कोई किताब। कितनी प्यारी बात है, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया, एक सहाबी आए और हजरत आयशा के पास आए, और पूरा मजमा याद रखना हजरत आयशा अगर हमारे नबी की बीवी तो हम सबकी, बोल हम सबकी। अल्लाह ने फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सारी बीवियां हमारी मां। एक सहाबी आकर कितने प्यार से कहते हैं अम्मा, ओ अम्मा आयशा कैफ़ काना अखलाक़ु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा आयशा इतना बता दो ना मेरे नबी के अखलाक कैसे थे, क्योंकि वो तो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए, पर्दा फरमा गए, अभी भी अपने रोज़े मुबारका में बोलो जिंदा है, हयात है, हमारा अकीदा है। लेकिन इस वक्त हमारे नबी हमारे दरमियान में नहीं। आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना, आपका पीना कैसा था? हज़रत आयशा ने फरमाया मैं कहां तक मेरे नबी की जिंदगी सुनाऊंगी, कहां तक मेरे नबी की जिंदगी सुनाऊंगी? बस एक लफ्ज कहती हूं समझ लेना। क्या लफ्ज कहा? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया खुलुकुहु अल कुरान। क्या मतलब? हज़रत आयशा ने फरमाया क़यामत तक आने वाला समझ ले जिसने कुरान को देखा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने, आज मुस्तफा को देखा, आज यानी जिसने कुरान पढ़ा उसने मुस्तफा को देखा, जिसने मुस्तफा को देखा उसने कुरान को देखा। मतलब कि मुस्तफा को आज भी हम देख सकते हैं, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीब और गरीब बात है, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को 30 पारों में बंद किया, बोलो अल्लाह ने अगर कुरान पाक को 30 पारों में बंद किया तो अल्लाह ने मुस्तफा को आयशा के कमरे में मौजूद रखा। अगर कुरान आला गए मुस्तफा आला है, कुरान बाला गए मुस्तफा बाला गए, कुरान निराला गए, बोलो मुस्तफा निराला है। कुरान अगर किताबों का सरदार है तो मुस्तफा नबियों का सरदार है। कुरान सच्चा गए मुस्तफा सच्चा है, कुरान हसीन गए मुस्तफा हसीन है, कुरान लाइब गए मुस्तफा बेआइब है। अल्लाह की कसम जिसने कुरान को पढ़ा वो कारी बन गया, जिसने मुस्तफा को पढ़ा वो सहाबी बन गया। ये नबी की बात आज सुन के जाओ मेरे प्यारो। बस निकाह के लिए ही मैंने ये सारा बैकग्राउंड तैयार किया। सच बताओ हमारे नबी से बढ़कर सच्चा कोई नहीं, कुरान से बड़ा सच्चा कोई नहीं। और सब चाहते हैं ना नबी को देखे, अरे बोलो ना देखे, और सही में अल्लाह के वली देखते हैं। अभी मैं वहां गया, बता गया था बगल में नसवाड़ी गया था नूर भाई, मेरा पूरा बदन कांपने लगा। जब मैं नसवाड़ी में गया तो एक आदमी आया और वो अच्छी खासी उम्र वाला था, कहने लगा बस कारी साहब मैं आपके हाथ पर बैयत होने के लिए आया हूँ। मैं पहले तो बैयत करने को तैयार नहीं था क्योंकि मैं सोचता था वो अल्लाह का वली इतना प्यारा प्यारा नजर आता, काय को गुनहगार के हाथ पर बैयत होता। कहता नहीं मेरे को हुक्म मिला, मैं आपके हाथ पर बैयत होने आया। खैर वो मेरे हाथ पर बैयत हो गया और अब हमको तो जो बैयत करना है, जो रूल रेगुलेशन है वो सब मैंने कार्ड भी दिया। जब सब कार्ड वार्ड दे दिया, दुआ हुआ हो गया और मुलाकात करने लगा, मुझे क्या कहने लगा मालूम है कारी साहब 36 मरतबा अब तक प्यारे नबी को ख्वाब में देख चुका। मेरा बदन ऐसा कांपने लगा। सही में मुन्ना भाई मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम भाई जा। वो कहा तो मैं सोचने लगा ये गुनहगार है भाई, काय को इतना बड़ा अल्लाह का वली मेरे हाथ पर बैयत होने को आया। लेकिन खैर मुझे ये बताना है कि हम हर एक तमन्ना करता है कि मुस्तफा को देखे, बोलो तमन्ना करता ना। और आयशा ने क्या फरमाया, हमारी माँ ने, माँ होती है ना, अपने बच्चों का सारा मामला हल कर दी। कुरान देख ले मुस्तफा नजर आएगा, मुस्तफा देख ले कुरान नजर आएगा। लेकिन हम में से किसी ने कुरान को नहीं देखा, मोबाइल जरूर देखा। हमारा हाथ सुबह से लेकर अब तक फेसबुक स्टेटस, यूट्यूब, व्हाट्सएप सब नापाक, सब गंदा। सुबह से लेकर अब तक हमने कुरान को देखा नहीं। चलो नहीं देखा, बहुत बिजी है, शादी वाला घर होगा, सब बहुत बिजी है, लेकिन कम से कम कुरान पाक को हाथ भी नहीं लगाया, कुरान पाक को मोहब्बत से देखा भी नहीं। चलो एक बात समझ लो, हमारे नबी से बढ़कर सच्चा कोई नहीं और कुरान से बढ़कर सच्ची किताब कोई नहीं। दोनों का खुलासा ये है कि कौन सी शादी में कौन सा संसार सुखी रहता है। भाई सब चाहते हैं, भाई मैं भी चाहता हूं कि मेरी बेटी बहुत सुखी रहे क्योंकि मैं बेटी का बाप हूं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी चाहते होंगे कि मेरी बेटियां सुखी रहे, क्योंकि बेटियों का बाप जितना परेशान होता है बेटे का बाप इतना परेशान नहीं होता। क्योंकि अल्लाह की कसम बेटा नेमत है, बोलो बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी 4 बेटियां, रुकैया है, उम्मे कुलसूम है, ज़ैनब है, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमाइन। तो एक सवाल होता है कि कौन सी शादी में सुख, चैन, इत्मीनान, सुकून, जोड़ा दुनिया में भी सलामत, जोड़ा जन्नत में भी सलामत, बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी शादी? एक सहाबी ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए तो पूछा अल्लाह के रसूल मेरी एक ही बेटी है। एक सहाबी आए, अल्लाह के रसूल एक ही बेटी है, बहुत लाड़ प्यार से रखा। अल्लाह कभी उसके हाथ में आंसू नहीं देखे। अल्लाह
अल्लाह के रसूल मांगने से पहले हमने चीजें उसके पास लाकर रखी है। अल्लाह ने हमको माल दौलत सब दिया है, बेटी को गले से लगाया है, न कभी उसकी माँ ने उसको डांटा है, न कभी ये बाप ने उसको डांटा है। अल्लाह के रसूल आज उसका निकाह है, अब क्या करे मेरे प्यारो। हमारे नबी ने फरमाया सिर्फ तुम्हारी बेटी के लिए नहीं, एक काम मैं बताता हूं, कर लो, कयामत तक के निकाह में सुख और चैन रहेगा। करेंगे, बोलो काम करेंगे इंशाअल्लाह। मैंने थोड़ा हिम्मत वाला काम है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शादी करने के मोड़ पे होंगे, तो उनको मैं कह रहा हूँ कि भाई करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और सच बताना, हमारे नबी से बढ़कर सच्चा, हमारे नबी की बात फाइनल, अब इसके आगे किसी की बात चलने वाली। हमारे नबी ने फरमाया क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदमुन निकाह बरका अयसरुहु मगुना। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो निकाह बरकत वाला, वो निकाह रहमत वाला, वो निकाह मगफिरत वाला, वो निकाह मोहब्बत वाला, वो निकाह इत्मीनान वाला, वो निकाह झगड़े फसाद से दूर होने वाला, वो निकाह जिसमें रुपया पैसा कम खर्च किया गया होगा, सादगी के साथ निकाह। मस्जिद में निकाह हुए, छोटा मोटा वलीमा हो गया, क्योंकि ये मंगनी वाली रस्म इस्लाम में, अरे बोलो मेहंदी वाली रस्म, दूल्हे का जूता छुपाना, नाक खींचना, कुछ नहीं है। निकाह, निकाह के बाद दूसरे दिन वलीमा, खत्म, शॉर्ट एंड स्वीट, निकाह कर लो, वहां बरकत ही बरकत होगी। और जितना खुराफात करते जाओगे उतना निकाह में बरकत दूर होती जाएगी। ये मैं कहता तो शायद वापस रिवर्स हो जाता, लेकिन ये बात हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह की कसम रजब महीना है, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। बस बात खत्म करता हूं, तो निकाह सादगी के साथ करोगे इंशाअल्लाह। एक बात और मैं बता दूं मेरे प्यारो, ये निकाह में हम लोग आए, बोलो आए, अरे हाँ बोलो ना, आए दावत पर आए, क्योंकि हो सकता है हम असर की नमाज कोई और मस्जिद में भी पढ़ते होंगे, जैसे हमारे नूर भाई है, ये मुन्ना भाई है, वो नदीम भाई है, ये सब असर की नमाज कोई और मस्जिद में पढ़ते होंगे, मगर आज ऐसे बहुत सारे हैं जो यहाँ पर आए सिर्फ किस लिए आए, निकाह के लिए। अच्छा निकाह में आपको दावत मिली, अब अगर दावत क्या गए, हाँ कुछ लोग होते हैं हमारे सूरत में नूर भाई है, क्या करेंगे मालूम है, दावत में जाएंगे और सोचिए जाएंगे, लड़का वाला पूछा खाते खाते भाई लड़की वाले की तरफ से आया, लड़की वाले ने पूछा तो खाते खाते लड़के वाले की तरफ से आया, और बारह कर अपने दोस्त के हाथ ताली बजाता, उल्लू बना के आया। मैं कहता उल्लू बना के नहीं आया, उल्लू बन के आया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको खाने की दावत ना हो और फिर जबरदस्ती दावत में जाए, हमारे नबी फरमाते दखल सारिका व खरज गासिबा, आखिरत के एतबार से चोर बनकर गया था और लुटेरा बन के बाहर आया हुआ है। इसलिए मुझे मालूम है आप लोग अगर दावत है तो आप लोग थोड़ी ऐसा करोगे, कोई सूरत वाला और करता होगा, आप लोग थोड़ी ऐसा करोगे। आप सब तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह आप सबके जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे को सिर्फ इतना बताना कि आपको दावत मिली तो आप लोग आए ना, हाँ बोलो ना, हाँ भाई ये रिजवान कुछ नहीं बोलेगा, ये शर्माता है, आप लोग क्या शर्मा रहे हो, बोलो ना, आप लोग दावत मिली तो आए ना। कंकोत्री मिली थी, कंकोत्री, हाँ या नहीं, हाँ कंकोत्री कितनी मिली, वो एक की तो एक ही मिले। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए बताओ कि बहुत सारा मजमा बैठा है माशाल्लाह, नहीं आते, कोई काम भाई नहीं आया तो आज निकाह नहीं होते, मैं नहीं आता निकाह पढ़ाने वाला, निकाह मैंने कहा था हाफिज अलमास को 2 दिन पहले तबीयत ठीक नहीं है शायद नहीं आऊं, मुझे ऐसा लगा ये बोलेगा कि शायद अपन निकाह थोड़ा आगे पीछे करेंगे, मुझे कहा कोई बात नहीं हम सब पढ़ा लेंगे। मालूम हुआ कि निकाह में ये स्पीड पकड़ गया है, अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। फिर हम लोग आए, हम नहीं आते, पूरी निकाह होने वाले थे, तो क्यों आए हम लोग, क्यों आए मालूम, रिश्तेदारी निभाने। क्या करने, या तो रिश्तेदारी निभाने या दोस्ती निभाने, और दोनों निभाना शरीयत में जरूरी है, बोलो दोनों निभाना शरीयत में। अल्लाह ने फरमाया रिश्तेदारी निभाओ, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात मत तोड़ो। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसल, अल्लाह का हुक्म है रिश्तेदारी मत तोड़ो। कितने चाचा भतीजे से बात नहीं करते, कितने भांजे मामू से बात नहीं करते, गलत है, बोलो गलत है। हमारे नबी को रिश्तेदारी निभाना किसको कहते हैं, यहाँ से इसने हदिया भेजा, वहां से उसने हदिया भेजा, हमारे नबी ने फरमाया ये रिश्तेदारी निभाना नहीं है, ये दोस्ती निभाना। तो दोस्ती निभाना क्या है, रिश्तेदारी निभाना क्या है, खुदिल अफ़्वा वअमुर बिल उर्फ़ि वअरिद अनिल जाहिलीन। हमारे नबी ने फरमाया रिश्तेदारी निभाना ये है, सामने वाला तोड़ते जाए तुम झुक झुक के उसके साथ में जोड़ते जाओ। भाई मामू बात नहीं करता, घर से दरवाजे से निकालता, फिर जा रहा है, फिर जा रहा है, मामू मेरे को माफ कर दे, मामू मेरे को माफ कर दे, ये नहीं मानो, गलती तुम्हारी क्या गलती मेरी, बस मेरे को माफ कर दे। हमारे नबी फरमाते जिसने रिश्तेदारी को निभा लिया उसने जन्नत को निभा लिया। तो आप लोग आए माशाल्लाह रिश्तेदारी निभाने। लेकिन मेरा तो एक ही सवाल है, कंकोत्री कितनी मिली, क्यों नहीं बोलते आप लोग, ये सब नूर भाई तेरे जैसे दुखी बैठे हैं, जिसकी शादी नहीं हुई वो सोचते कब मौलाना निकाह पढ़ा, ये भी दिल में बोलता होगा भाई पढ़ा के खत्म करना, भाई बात खत्म करना, कोई इतना लंबा खींचता है। रिजवान ऐसा सोचता तो नहीं ना, बाकी बीवी को कितना भी खुश करने जाओ बीवी खुश होगी, देखो सब कर रहे हैं, क्यों नहीं खुश होगी, हाँ इतना है कि उसका मिजाज टेढ़ा है, लेकिन हमको थोड़ा मिजाज उनका मिजाज तो इतना टेढ़ा है भाई साहब, वो एक मियाँ बीवी जवान यानी अभी अभी शादी हुई, भाई तू सुन ले शायद तेरे साथ भी ऐसा मामला पेश आवे, नया जोड़ा, वो सी साइड समझते हो ना, आपको तो मालूम होगा सापुतारा के बादशाह सी साइड पे गए घूमने के लिए, हाँ सापुतारा जाते, मैंने पूछा क्यों जाता, तो वो सूरज डूबता है वो देखने का था, मैं तेरे टेरेस पे से देख लेना रोज डूबता है, वहाँ अलग डूबता है नहीं अलग डूबता है। तो एक मियाँ बीवी वहाँ सी साइड पे गए, वो नए में तो बीवी खूबसूरत लगती है नूर भाई, वो तो बाद में मालूम पड़ता, इसको भी 1 महीने बाद मालूम होगा क्या कार्य मदनी करके चला गया। तो वो सी साइड पे गया और दोनों बड़ी अच्छी बातें करे, उसने बीवी ने क्या कहा मालूम, ये तो कितना अच्छा दरिया है, आपको स्विमिंग करने आता है, तैरने आता है, वो भी आता है मेरे को नहीं आता, बड़ा इस पर फिट होते ही जा रहा है। उसने कहा ना मेरे को स्विमिंग करने नहीं आता, तो बीवी ने मजाक में क्या कहा, तेरे को स्विमिंग करने नहीं आता, कुत्ते को आता है,
कुत्ते को पानी पे डालो आराम से दरिया में तैरेगा, अल्लाह ने उसको ताकत दी है, वो तैरता है। कुत्ते को आता है, कुत्ते को आता है, तेरे को नहीं आता। उसको दूल्हे को बहुत लगा कि मेरी बीवी ने ऐसा बोली कुत्ते को आता है तेरे को नहीं आता। वो बेचारा काम धंधे पर जावे और रोजाना 2 घंटा जाके स्विमिंग सीखे। 15 दिन के बाद स्विमिंग सीख लिया, 15 दिन महीने के बाद फिर अपनी बीवी को खुद तैयार कर, चलो सी साइड, और अपना पूरा सामान जैकेट वैकेट सब लेके तैयार करके वहां पर गया। जब आ गए ना तो बीवी को कहता है तैरने जाओ। तो बीवी ने कहा तेरे को तैरना कहा आता है? कहा आ गया तैरना, करके जैकेट पहना और दरिया में छलांग लगाया और गया और आया। क्या देखा? बीवी ने कहा उसमें क्या कमाल, तेरे में कुत्ते में फर्क ही क्या है? अब क्या करे बताओ, न चट अपनी न पट अपनी, लेकिन जिंदगी गुजारना है। और एक बात बता दूं, कान खोल कर सुन लेना, जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा गया सबसे अच्छा शोहर कौन, सुन लो मेरे जैसे बयान करने वाले लंबी लंबी जमात में जाने वाले, सुन लो सबसे अच्छा शोहर कौन। हमारे नबी चाहते तो ये कह सकते थे अव्वाबीन पढ़े, रातों के तहज्जुद पढ़े, चाश पढ़े, इशराक पढ़े, रोजाना 10 पारे पढ़े। हमारे नबी ने फरमाया खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिकुम, तुम में सबसे अच्छा वो है जिसकी बीवी कहे कि मेरा शोहर बहुत अच्छा है। समझ लो कि आसमान पर अल्लाह कहेगा मेरा ये बंदा बहुत अच्छा है। इसलिए हमारे यहाँ मामला क्या है, जितने शोहर है ना मैं भी उसमें, ये भी बैठा है सब क्या करेंगे मालूम है, बाहर दोस्तों की दुनिया में मैं एक मतलब रात को 2 बजे निकला, लेकिन बीवी के साथ। इसको मैंने देखा, इसको 2 बजे रात को एक हाथ लारी पे करके यूं लेटा हुआ है और इसके दोस्त चारों तरफ इसके खड़े हुए हैं। तो बाहर की दुनिया में हम लोग है ना बहुत जॉली है, हाँ कॉफी आमलेट और ये तवा, हम लोग इतने लोगों के दरमियान में हम लोग अच्छे समझे जाते हैं। तो कम वक्त हम ही लोग जब घर में आएंगे ना तो ऐसा आएगा जैसा खट्टी कड़ी का प्याला खट्ठूस मार के अंदर घुसा हुआ हो। और बीवी पूछेगी क्या हुआ, बहुत टेंशन है यार, ना कारोबार चलता है ना दुकान चलती है, उसने भी मेरे को कर्जा मांगा। क्यों सारा टेंशन यहाँ है, वहां नहीं था, तबे पर नहीं था टेंशन। हालांकि उल्टा होना चाहिए था, दोस्तों को जाकर कहता दुआ करो मैं हालात में हो, और बीवी के सामने मुस्कुराता हुआ था। हमारे नबी फरमा, हजरत आयशा फरमा कि मेरे नबी जब भी घर में एंटर होते चेहरे पर वो मुस्कुराहट होती कि 1.5 दिन तक मैंने खाना नहीं खाया होता, मगर नबी के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मेरी भूख खत्म हो जाया करती थी। खैर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे को ये कहना था, वापस पॉइंट पर आ जाओ, कंकोत्री कितनी आ गए ना आप लोग, और आना जरूरी था, जैसा मैंने कहा आना जरूरी था। ऊपर वाला कितने कंकोत्री भेजता है, नहीं आती आपको, नहीं आती ऊपर वाले की कंकोत्री नहीं आती। हमारी कंकोत्री में तो मिसिंग भी होता है, क्योंकि हमें भाई दूल्हे का घर है, कोई एक आध घर रह गया, जिसका घर रह गया वो तो हमारे को मौत तक पहुंचा देता। लेकिन ऊपर वाला जब कंकोत्री 5-5 भेजता है, कोई भी घर बाकी नहीं रहता, उसमें फजर की कंकोत्री पे फूल लगाता है। क्या फूल लगाता? अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब ये जितने बैठे हैं मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अल्लाह को हाजिर नाजिर रखकर बताओ, जमीन की कंकोत्री वाले पर हम अल्लाह के घर में आ गए और ऊपर की कंकोत्री को फाड़ दिया। फजर नहीं पड़ी आज, जोहर ऊपर की कंकोत्री फाड़ दिया। अच्छा मेरे घर में अगर शादी होए थोड़ी देर के लिए मानो, और मैं किसी को कंकोत्री दूं और वो मेरे सामने कंकोत्री फाड़े, मैं क्या करूंगा? असल में तेरे को जो मेरे घर पे आया था बिल्कुल निकाह में दिखना मत, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो हम रोजाना अल्लाह की कंकोत्री फाड़ देते, आसमान वाले की कंकोत्री फाड़ो, जमीन वाले की कंकोत्री फैलाओ। ये कौन से हमारे नबी से मोहब्बत है? हमारे नबी ने फरमाया था मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। कौन नबी की आंखों को ठंडा करने जा रहा है? खैर मेरे प्यारों में निकाह पढ़ा दूंगा, लेकिन आज एक पैगाम लेकर जाओ, हम नमाज की पाबंदी करेंगे, वो करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ करो ना करो, आज से एक बार पक्की कर लो कि आज ये शाम की जो मैंने नमाज पढ़ा इंशाअल्लाह मौत की शाम तक मैं भी पढ़ूंगा और मेरे दोस्तों को लेकर मस्जिद में जाऊंगा इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। लाओ बेटे, बेटा रिजवान, तेरी इजाजत हो तो सर इजाब कबूल शुरू करवाऊं। चलो सबसे पहले मैं वकील को बुलाना चाहूंगा, हमारे मोहम्मद फारूक मोहम्मद इब्राहिम सनागर, आप है माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जान माल उम्र में बरकत अता फरमाए। अपनी बेटी साजिया से इजाजत, उन्होंने इजाजत क्या मेहर तय किया, नकद या उधार? नकद माशाल्लाह। अच्छा हमारे पहले गवाह है मोहम्मद सलीम अहमद हुसैन शेख, आप तो अहमदाबाद के माशाल्लाह, अल्लाह आने को कबूल फरमाए। दूसरे गवाह आरिफ इस्माइल मोरिस वाला, आप है माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप ऐसा मुस्कुराते थे ऐसा लगता आपका भी निकाह पढ़ा दे रहे हैं। अब हमारे दुल्हे मियां बेटे रिजवान, आपकी तरफ में आ रहा हूं, लेकिन पहले मैं खुतबा पढ़ा दूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपसे इजाब कबूल और उसके बाद दुआ। लेकिन पढ़ाऊं ना, निकाह का खुतबा पढ़ाऊं। 30 सालों में कोई ना नहीं बोलता मेरे को। अभी हम आ रहे थे ना तो एक बग्गी दिखी, मैंने कहा रिजवान को बिठाने का था उसके ऊपर, घोड़े के ऊपर। देखा है आपने दूल्हे को घोड़े पे बिठा दिया? इमरान तेरे को बिठाए थे? नहीं तेरे जमाने में नहीं था, नूर भाई बैठा था। हाँ दूल्हे को घोड़े पे बिठा दिया, हाथी पर आज खुला खुला। बाकी मेरे को किसी ने कहा कि मौलाना ये दूल्हे को काहे को घोड़े पे बिठाता? मैंने कहा अभी भी मौका है, भाग जा। चलो निकाह का खुतबा, फिर उसके बाद इजाब कबूल, फिर दुआ इंशाअल्लाह। अल्लाह सबके बैठने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جی بیٹے رضوان بن اعجاز شیخ، آپ نے ہمارے وکیل محمد فاروق محمد کہا ہے وکیل ان کی وکالت سے، اور ہمارے دو گواہ محمد سلیم اور عارف، محمد سلیم اور عارف ان کی گواہی سے، اور یہ پورا مجمع ہی گواہ ہے ان تمام کی موجودگی میں، آپ نے سازیہ بنت ساجد سناگر کو بعوض مہر 20,000 روپیہ نقد آپ نے سازیہ کو منقوہ زوجہ، آسان الفاظ میں آپ نے سازیہ کو بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. دوسری مرتبہ؟ جی ہاں میں نے قبول کیا. ماشاءاللہ، پہلی مرتبہ اتنے زور میں بولا کہ دوسری مرتبہ بلوانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. اللہ قبول کر لے. بھائی ہمارا بیٹا ایسا معمولی تھوڑی ہے بھائی، ہمارے ایک بہت خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان میں مولانا ایوب صاحب یہاں پر تشریف فرمائے. میں چاہوں گا دعا وہی کروائیں گے انشاءاللہ. یہ اجمیر سے تشریف لائے اور میں تقریباً 2 سے 3 مرتبہ اجمیر کی درگاہ پر گیا، اور وہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. خواجہ معین الدین چشتی کی درگاہ مبارک سامنے اور بیان کرنے کا موقع سامنے ملا. کسی کو ملتا نہیں ہے، وہ اللہ نے موقع دلوایا، ذریعہ اللہ نے ان کو بنوایا. 3 مرتبہ 1-1 گھنٹے تک کا یا 2 مرتبہ 1-1 گھنٹے تک کا بیان ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اور ان کی نسبت ہی بہت اونچی ہے کیونکہ جن کے قدم اجمیر شریف میں رہتے ہوں گے وہ قدم بھی کتنے مبارک ہوں گے، اور یہ اجمیر کی درگاہ کے ذمہ داروں میں سے ایک ذمہ دار اللہ نے ان کو بنایا ہے. تو ضرور دعا تو وہی کروائیں گے انشاءاللہ. آ جائیے مولانا. نہیں مائک لے لیجیے، مائک لے لیجیے، ٹھیک ہے وہیں سے دعا کریں.